एक अनूठे अंतर महाद्वीपीय सहयोग में न्यू डे बोर्डिंग स्कूल दयालबाग आगरा के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों ने नॉर्थ अमेरिका के दयालबाग राधास्वामी सत्संग एसोसिएशन से जुड़े विद्यार्थियों के साथ मिलकर गुरुवार 9 जुलाई 2026 को सुबह के फील्ड वर्क के दौरान मॉडर्न ट्रेडिशनल एंड दयालबाग हेल्थ केयर सिस्टम विषय पर संवादात्मक प्रस्तुति दी। यह कार्यक्रम दयालबाग के एग्रोइकोलॉजिक प्रिसीजन फार्मिंग क्षेत्र में आयोजित हुआ, जहां प्रातःकाल खेतों में ऑर्गेनिक धान की रोपाई का कार्य चल रहा था। दयालबाग में लगभग 75 एकड़ क्षेत्र में ऑर्गेनिक धान की रोपाई सेवा भावना के साथ की जा रही है, जिसमें देश विदेश से आए सत्संगी भाई बहन, बच्चे और विद्यार्थी उत्साह पूर्वक सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। खेतों में श्रम, सेवा, अनुशासन और आध्यात्मिक वातावरण के बीच आयोजित यह कार्यक्रम दयालबाग की जीवन शैली का अत्यंत प्रेरणादायी उदाहरण रहा। कार्यक्रम परम पूज्य गुरु महाराज एवं परम आदरणीय रानी साहिबा की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित किया गया। न्यू डे बोर्डिंग स्कूल दयालबाग की प्रिंसिपल प्रोफेसर विभा रानी सत्संगी ने दीपा प्रसाद, समन्वयक इंटरेक्शन नॉर्थ अमेरिका और प्रोफेसर स्वरूप रानी माथुर, अध्यक्ष नॉर्थ अमेरिका सत्संग संस्कृति विकास समिति DRSNA के सहयोग से इस सत्र का आयोजन किया। वर्ष 2011 से हर साल आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम दोनों महाद्वीपों के विद्यार्थियों को एक दूसरे से सीखने, अपने विचार साझा करने और अलग अलग संस्कृतियों के बीच सहयोग की भावना को मजबूत करने का एक साझा मंच देता है। पूरे वर्ष विद्यार्थी मेडिकल एक्सपर्ट्स के मार्गदर्शन में ऑनलाइन सेशंस की सहायता से मिलकर तैयारी करते हैं और फिर दयालबाग की जीवन शैली, शिक्षा, सेवा और आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़े विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। Herbs, plants and minerals with minimal side effects and great cultural acceptance. These remedies are safe, affordable and accessible, especially in rural areas. Traditional medicine helps me control a chronic illness through its holistic approach. Thus, modern medicine also take a holistic view of health? No, not at all. That is one of the limitations of modern medicine. In modern healthcare system, medication and procedure are disease specific and may cause side effects, or may even lead to overdiagnosis and unnecessary treatment. In addition, there are high costs associated with specific testing which creates inequality of access to healthcare. In contrast, traditional medicine has limited scientific evidence, its therapeutics act slowly, and their effectiveness varies across individuals. Does the Indian government support efforts to scientifically validate the traditional medicines as this approach is holistic? You see, to address the limitations of traditional medicine, the Government of India formed the Ministry of Ayush in 2014. From grassroots education to cutting-edge research and global outreach, the Ministry of Ayush bridges ancient traditions with modern science, empowering millions to reclaim wellness through India's gift to humanity. The Ministry of Ayush established and oversees several premier institutions like All India Institute of Ayurveda, New Delhi, Ayush Vishwavidyalaya in Gorakhpur, Kurukshetra, Raipur to provide scientific base to the traditional system of healthcare. So now, we can say that both systems have undeniable strengths and weaknesses. The future lies not in choosing one over the other, but in integrating both. And that brings us to a remarkable example, the Diyalbag healthcare system. Diyalbag facilitates holistic healthcare from maternity to eternity for the lost, lowest, least, and the lost. Under the guidance of the spiritual master, Sharan Ashram Hospital at Diyalbag takes care of the general health of people, which integrates the goodness of both systems of modern medicine. राधा स्वामी, मैं विभा रानी सत्संगी, यहाँ दयालबाग में डे बोर्डिंग स्कूल चलता है, वहाँ की मैं प्रिंसिपल हूँ। ये जो प्रोग्राम अभी आज हुआ है, ये प्रोग्राम है इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ डे बोर्डिंग स्कूल दयालबाग एंड नॉर्थ अमेरिका। तो ये
ऐसा लगता है कि मतलब जैसा हम लोग सोचते हैं कि कल्चरल एक्सचेंज इससे होता है स्टूडेंट्स में, दोनों तरफ के स्टूडेंट्स मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। और काफ़ी समय से ये प्रोग्राम चल रहा है दयाल बाग में। 2010 में परम गुरु हुजूर डॉक्टर लाल साहब ने इस प्रोग्राम को शुरुआत करी थी, और उनके बाद जो अभी हमारे वक्त संशिक्षक जो हैं प्रोफेसर ग्रेशियस हजूर प्रोफेसर प्रेम चरण सत्संगी साहब, ये भी इनका भी हम लोगों को बहुत इनकरेजमेंट मिला, और इसको हम लोग उनकी ही गाइडेंस में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा होता है, दोनों तरफ के स्टूडेंट्स आपस में मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं। एक टॉपिक हम लोग हर साल तय कर देते हैं और उस पर वो आपस में बातचीत करते हैं। उस बातचीत से के परिणाम में जो हम लोगों को रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग फिर एक स्क्रिप्ट की तरह बना करके और फिर हम लोग यहाँ पे साल में एक बार प्रेजेंट करते हैं। ये इसी समय करते हैं, जुलाई में ही हम लोग। और ये हमारी मैडम दीपा है, ये नॉर्थ अमेरिका के बच्चों को यही लेके आती हैं स्टूडेंट्स को, तो ये नॉर्थ अमेरिका की कोऑर्डिनेटर हैं। Rajesh Swami. So I am the coordinator for the North America team which interacted with the Dayalbagh Day Boarding School. We have been doing this since 2011 and under the gracious guidance of Huzoor Satsangi Sahab, we were told कि आप सत्संगी बच्चों के साथ interact करिए। So since then हमारे बच्चे यहाँ आते हैं। जुलाई का हमारा जोनल भंडारा होता है, यहाँ आके दयालबाग के बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उनको दयालबाग का टूर दिया जाता है और वो दयालबाग के इंस्टीट्यूशंस में सेवा करते हैं और लाइब्रेरी में भी जाके यहाँ के बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। सो दिस हैपन्स एवरी ईयर ड्यूरिंग द जुलाई जोनल भंडारा एंड 6th ग्रेड से 12th ग्रेड के जो बच्चे हैं, जैसे कि डे बोर्डिंग स्कूल के हैं वैसे ही हमारे भी वहाँ से आते हैं। पूरा साल दे प्रिपेयर, वी हैव प्रैक्टिसेस ऑन जूम एंड ऑनलाइन प्रैक्टिसेस करते हैं, एक्सचेंज होते हैं आइडियाज़। द थीम इज़ ऑलवेज डिसाइडेड बाय द दयालबाग अंडर द गाइडेंस ऑफ ग्रेशियस हुजूर। हर साल हम लोग कोई नई थीम सेलेक्ट करते हैं। इस वर्ष जो थीम सेलेक्ट हुई थी ग्रेशियस हुजूर के गाइडेंस से, वो थीम थी मॉडर्न, ट्रेडिशनल एंड दयालबाग हेल्थ केयर सिस्टम। तो इसमें जैसे कि और लोग भी जानते होंगे कि आजकल इंटीग्रेटेड मेडिसिन का अप्रोच चल रहा है, जिसमें मॉडर्न एंड ट्रेडिशन मिला करके पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। तो इसमें बच्चों ने जो डिस्कस किया उसमें ये था कि दयालबाग में एक और पैरामीटर है जो वर्क करता है। यहाँ पर रेगुलरली हम लोगों को ग्रेशियस हुजूर की गाइडेंस मिलती है बीमारियों में, और उससे जो ठीक होते हैं पेशेंट, उसको हम लोग स्पिरिचुअल हीलिंग कह सकते हैं। तो ये स्पिरिचुअल हीलिंग जो है, ये दयालबाग में एक नया डायमेंशन है या अलग से डायमेंशन है जो यूनिक है, और जिसके हम लोग दयालबाग के लोग हेल्दी रहते हैं। यहाँ का माहौल भी बहुत हेल्दी है, जो यहाँ वे ऑफ लिविंग है वो भी बहुत हेल्दी है। लोग खेतों में काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। इन सब के अलावा एक दयालबाग की ये कहिए स्पिरिचुअल थ्योरी एक और है, कर्म थ्योरी। कर्मा थ्योरी। सो द कर्म यू डू उसी का आप फल भोगेंगे। सो दयालबाग में बहुत अच्छा कल्चर है कि आपको खेतों में बुलाया जाता है, राइट। आप सेवा करिए यहाँ, तो आपके कर्म जो हैं यही जो हैं अच्छे से पूरे हो जाएंगे। सो द ग्रेशियस गाइडेंस इन दिस इज कि इंटीग्रेशन, जो दयालबाग हेल्थ केयर सिस्टम है, इट इंटीग्रेट्स बोथ, ट्रेडिशनल को भी लेते हैं, आयुर्वेद को भी लेते हैं और मॉडर्न को भी लेते हैं, और उस सब का इंटीग्रेशन इज द दयालबाग हेल्थ केयर सिस्टम which we projected today in today's interaction. We emphasized that there are traditional, there is modern, but there is also the Dayalbagh healthcare system which integrates the both with the special guidance, which is the spiritual healing, which is the most important factor in the Dayalbagh healthcare system. एक लाइन और मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें कि दयालबाग में जो भी दुख तकलीफ आती है, ये हम लोग ये मानते हैं कि ये कर्म की कटाई है, और चाहे वो बीमारी की तकलीफ हो या कोई और तकलीफ हो, तो जो बीमारी हारी आती है इससे मनुष्य के कर्म कटते हैं, और कर्म कटने से इससे आपके जीवन मरण के जो है उससे चक्र है उससे छुट्टी मिल जाती है, उससे फ्री हो जाते हैं।
तो जो बीमारी हारी है इसको परेशानी ना ले करके इसको डिवाइन ग्रेस मानना चाहिए, जिससे कि हमारे कर्म कटें और हम लोगों की मुक्ति हो। राधा स्वामी। थैंक यू राधा स्वामी।